Good day everyone. Myself Tripti Mishra. Today we are going to discuss class 3rd EVS chapter number 3 Water O Water. This is part 1 video. At the beginning of the chapter, first we will study a poem on water. This poem is written by the poet Sri Prasad. I will wash my face with water, said Munna to his nani. मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से. I will wash my face with water. मुंह धोऊंगा पानी से, said मुन्ना to his नानी. मुन्ना कहता नानी से. We all quench our thirst with water. प्यासे पानी पीते हैं. क्वेंच माने बुझाते हैं, थ्रिस्ट माने प्यास और वाटर माने पानी. तो यहाँ कविता के उसमें हम कह सकते हैं प्यासे पानी पीते हैं या पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं. We are all alive because of water. Alive means जीवित. पानी से सब जीते हैं. प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं. We are all alive because of water. हम सब पानी की वजह से ही जीवित हैं, या हम कहें पानी से सब जीते हैं. Water has been with us for ages. एजेस माने काफ़ी सालों से. पानी हमारे साथ काफ़ी सालों से है, या कविता की भाषा में हम कहें जाने कब से पानी है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. इसकी कहानी कई पेज भर सकती है, या कविता की भाषा में कहें कितनी बड़ी कहानी है. मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से. प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं. जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है. Somewhere it is due. कहीं ओस है. ड्यू माने ओस. समवेयर इट इज स्नो. कहीं यह बर्फ है. कहीं ओस है, बर्फ कहीं. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. पानी ही क्या, भाप नहीं. या जैसा कि आप जानते हो कि भाप भी पानी ही है. तो यहाँ पानी के हमें 3 फॉर्म्स मिल गई, 3 रूप मिले. एक ड्यू जो कि पानी का लिक्विड फॉर्म है. दूसरा है स्नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर. एंड स्टीम माने भाप, यानी पानी की जो कि हमारा वेपर फेज या गैसियस फेज है. Have you seen all these forms of the water? Okay, I will show you. Children, this is the liquid form of the water which we can observe in the winter season on the leaves of the plants. That is called dew. In this we can observe water in the drop form or liquid form. Children, this is the another form of water that is called snow. In the snow,
water is in the solid form that we can observe at the hilly areas where the temperature is less than 0 degrees Celsius. Childrens, this is the steam form of the water. This you can observe in your kitchens also. Whenever your mother is warming the water, you can observe steam coming out of the pan, and that is the gaseous form of the water. So here we studied about the three different forms of the water, that are liquid, solid and gas. In the liquid phase, dew is the example. In the solid form, snow is the example. And in the gaseous form, steam is the example. So here, next line is, water has formed so many. पानी के बहुत से रूप हैं. That is what says my नानी. ये वो है जो मेरी नानी बताती है. या हम कविता के रूप में कहें अगर इन सभी पंक्तियों को, तो कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है. The river flow, the waterfalls sing. नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल. And water swells in lakes and springs. तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल. Here it is given the different water bodies. इन पंक्तियों में बहुत अलग अलग water bodies को बताया गया है. First है the river. River, have you seen the river? Any river? Yes, maybe in your city so many rivers you can see. So here I will also show you the picture of the river. This is the picture of a river. What is river? River is a large stream of water flowing in a channel to the sea or lake or another river. River जो है वो पानी की एक लार्ज स्ट्रीम है जो कि एक चैनल में बहती है और अंत में या तो समुद्र में जाके मिलती है या किसी लेक में जा मिलती है या किसी दूसरे रिवर में जा मिलती है. Children, this is the picture of a waterfall. What is waterfall? Waterfall is a shower of water falling from a height. So you can see how beautiful waterfall it is. In the world, so many natural waterfalls are there. Children, this is the picture of a lake. Lake is a relatively large water body of slowly moving or standing water. Lake एक बड़ा वाटर बॉडी है जिसमें स्लो मूवमेंट होता है या स्टैंडिंग वाटर मिलता है. यहाँ रिलेटिवली लार्ज हम कंपेयर कर रहे हैं पॉन्ड से. पॉन्ड रिलेटिवली लेक से छोटे होते हैं. Children, this is the picture of a spring. Spring माने झरना. A spring is a point of which water flows from an aquifer to the earth's surface. So that is a natural spring which is also providing the water to us. Life on the earth it has brought. धरती पर जीवन लाया. पानी की वजह से ही धरती पर जीवन होता है. Watered fields and life they got.
खेत सींचकर लहराया, यानी पानी से जब हम खेत सींचते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, तो उनको भी जीवन मिलता है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, पर जब पानी बाढ़ में बदल जाता है, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होता है, परेशानीदायक होता है या भारी आफत ढाता है। तो धरती पर जीवन लाया, खेत सींचकर लहराया, पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। Have you seen the pictures of the flood, students? Okay, let me show you the pictures of the flood. This is the picture of a flood condition in which you can see all the houses and the things surrounding is merged into the water. ये बाढ़ की एक दृश्य है जिसमें आप देख सकते हो कि जितने भी घर हैं या दूसरी चीज़ें हैं सभी पानी में डूबी हुई हैं। तो जब पानी बाढ़ में बदल जाता है तो ये फिर बहुत भारी आफत हम पर ढाता है। Do you know any poem or song on water? क्या तुम कोई कविता या गाना पानी के ऊपर जानते हो? Recite it in the class. उसको क्लास में बोलो। अभी क्योंकि स्कूल नहीं चल रही हैं तो आप ये ऐसा कोई भी गाना या पोयम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गा सकते हो। Which are the places mentioned in the poem where we find water? ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो पोयम में बताए गए हैं और जहाँ पर हमें पानी मिलता है? So the places are rivers, waterfalls, lakes and springs. I also shown all these water bodies in pictures also. Now here some of the questions are there to write. Tick the activities for which water is needed. नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनमें से उन एक्टिविटीज़ पर टिक लगाना है जिनमें पानी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट इज़ टू प्ले, क्या खेलने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है? नहीं। नेक्स्ट इज़ टू सिंग, क्या गाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। नेक्स्ट इज़ टू रो ए बोट, नाव चलाने के लिए। Yes, here it is the activity which needed water. नाव चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ टू राइट, लिखने के लिए। नहीं, लिखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेक टी, yes, we want the water to make the tea. नेक्स्ट इज़ टू नीड डफ, नीड माने गूंथना, डफ माने आटा। आटे को जब हम पानी में मिला करके जो गुंधा हुआ आटा होता है उसे बोलते हैं हम डफ। सो टू नीड डफ, यस, फॉर नीडिंग द डफ वी नीड्स वाटर। टू रन ए फैन, पंखे को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है? नहीं। टू पेंट पिक्चर्स, यस, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए हमें कलर्स में पानी मिलाना पड़ता है। सो हेयर वी नीड्स द वाटर। To grow plants, yes, to grow plants also we need water. Now next question is, name any 4 activities which you can do without water. कोई सी 4 ऐसी एक्टिविटीज़ बताइए जो आप बिना पानी के कर सकते हैं। So the activities are playing, खेलना, आप बिना पानी के खेल सकते हैं। डांसिंग, डांस करना, नृत्य करना। स्लीपिंग, सोना एंड स्टडिंग, पढ़ना। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बिना पानी के कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर,
वो एक्टिविटीज़ जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। फर्स्ट इज बाथिंग, नहाना, बिना पानी के हम नहीं नहा सकते। कुकिंग, खाना बनाना, तो खाना भी हम बिना पानी के नहीं बना पाएंगे। गार्डनिंग, गार्डनिंग में हमें पौधों को पानी देना ही होता है, तो गार्डनिंग के लिए भी हमें पानी चाहिए। वॉशिंग, वॉशिंग चाहे हमें यूटेंसिल्स बर्तन धोने हो या क्लॉथ्स कपड़े धोने हो या कोई और चीज़ धोनी हो, सभी में हमें पानी की ज़रूरत होगी ही। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ नीड्स वाटर. Some other also activities may be which needs water. Now this is water more or less, पानी कम या ज़्यादा. So in our day-to-day activities we can see some of the activities we needs less water and some another activities we wants more water. हमारी दैनिक कामों में हम देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ के लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होती है. So here it is given, arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. नीचे दी गई एक्टिविटीज़ को हमें उनमें कितना पानी लगता है उसके आधार पर अरेंज करना है. बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर. उस एक्टिविटी से हमें शुरू करना है जिसमें सबसे अधिक पानी लगता है. जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो हैं टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डफ. सो out of these 5 activities, first is in which the most water is consumed, that is to water the field. खेत में पानी देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें काफ़ी मात्रा में पानी कंज्यूम होता है. नेक्स्ट इज़ टू क्लीन द हाउस. घर की सफाई के लिए हमें 2 से 3 बाल्टी पानी तो लग ही जाता है. फिर टू बाथ, क्योंकि नहाने के लिए हमें लगभग 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ टू नीड द डफ. आटा गूंदने के लिए, अगर हमारी 4 या 5 लोगों की फैमिली है तो उसका आटा गूंदने के लिए हमें लगभग 2 ग्लास पानी लग जाता है. एंड लास्ट इज़ टू ड्रिंक. पीने के लिए हमें लगभग एक बार में 1 ग्लास पानी चाहिए होता है. सो दैट इज़ द activities we arranged according to the amount of water. Water from where? पानी कहाँ से मिलता है? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. कविता में आपने नदियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, लेक्स झील के बारे में और झरनों के बारे में पढ़ा. वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस. हमें इन सभी जगहों से पानी मिलता है. फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर? तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है? पुट ए सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट. उन जगहों पर एक राउंड लगाओ, एक सर्कल बनाओ जो कि या तो तुम्हारे घर में है या तुम्हारे घर के आसपास है. लेक, वेल, ट्यूबवेल. आई थिंक ट्यूबवेल कहीं ना कहीं आपके घर में या घर के आसपास मिल जाता है. पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप भी कहीं ना कहीं घर में या घर के आसपास मिल जाता है. नेक्स्ट इज़ रिवर. हाँ, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ आसपास कुछ रिवर्स भी हैं. स्ट्रीम, टैप. यस, टैप भी मिल जाता है. सभी के घरों में टैप होता है लगभग. टैंक और टंका,
यस, हम लोग घर में पानी स्टोर करने के लिए टैंक और टंका बना के रखते हैं। सी, समुद्र, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना। तो जहाँ सर्कल किया है ये जगहों पर पानी हमारे घर के आसपास या ये चीज़ें हमारे घर में या घर के आसपास मिल जाती हैं। Now here some of the questions are there to write. Have you seen hot water coming out of the ground? Where? क्या आपने कभी ज़मीन से गर्म पानी बाहर निकलते देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? कुछ जगहों पर ऐसे गर्म पानी के झरने भी मिलते हैं। तो ऐसा ही एक गर्म पानी का झरना हमें मणिकर्णिका घाट पर भी देखने को मिलता है। अगर आपको मौका मिले कभी तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस, राइट इट्स नेम। क्या आपके गांव या शहर से होकर कोई नदी बहती है? अगर हाँ तो उसका नाम लिखो। तो यहाँ हमारे आसपास कुछ रिवर्स मिलती हैं, वो हैं चंबल, कूनो और सीप नदियाँ। सो हेयर द आंसर वी शुड राइट, द रिवर चंबल, कूनो एंड सीप passes through our city. Next question is, do you know the names of any rivers? Write their names. क्या आप कुछ रिवर्स के नाम जानते हैं, नदियों के नाम? अगर जानते हैं तो वे नाम लिखो। हाँ, हम देश की कुछ प्रमुख नदियों के नाम जानते हैं जो हैं, नेम ऑफ सम रिवर्स आर एज फॉलोज: यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र, etc. So these are some important rivers of our country. At last, here are some the questions for discussion. At home, where do you get drinking water? घर में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? जनरली आजकल हम सभी के घर में पाइपलाइन लगी हुई है, जहाँ वाटर बोर्ड, जल बोर्ड द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है, या अंडरग्राउंड वाटर से हम पानी लेते हैं। सो एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या आपको पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है? और अगर आपको दूर जाना पड़ता है तो उसमें कितना समय लगता है? आजकल हमें कहीं भी पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, पाइपलाइन से हमारे घर तक ही पानी आता है। सो हियर वी कैन राइट एज द आंसर, वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइंस, सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर। Sometimes during summers we need to call the water tanker. कभी कभी गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो ज़रूर हमें पानी मंगाना पड़ता है पानी टैंकरों से। I have heard that in some villages people need to go several miles to get water. लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कुछ जगहों पर या कुछ गांवों में लोगों को कई मील पानी लेने के लिए चलकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या तुम्हारे पड़ोसी भी उसी जगह से पानी लाते हैं? यस, द होल कॉलोनी गेट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द जल बोर्ड पाइपलाइंस। हाँ, पूरी कॉलोनी को ही पानी जो है वो जल बोर्ड की पाइपलाइन से ही सप्लाई होता है। Are there certain people who are not allowed to take water from there? क्या ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ से कुछ certain peoples को, कुछ विशेष लोगों को पानी लेने की मनाही है? जैसे कि पहले समय में हुआ करता था, हमारे यहाँ
जो डिस्क्रिमिनेशन मिलता था, जिसमें जातिवाद हुआ करता था और वहाँ कुछ एक ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को पानी लेने उस जगह से नहीं दिया करते थे। लेकिन आजकल वो सब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो चुका है और आजकल ऐसा कहीं नहीं होता है। तो here we can write the answer, no, there is no such person. नहीं, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कहीं से भी पानी लेने से रोका जाता हो। So students, this was all about the part 1 video in which we discussed the poem, studied about the different water bodies, different forms of water, and from where we get the water, and about the activities in which we need the water. The remaining portion of the chapter I will discuss in my next part 2 video. If this video is beneficial for you, also share the video with your other classmates. And most important, subscribe my YouTube channel NCERT Science Mantra. Also press the bell icon so that as I will upload my next video, you will get the notification. Thanks children for watching the video.